Okay, so basically, yesterday we covered the survey data, right? And also understand how we can import the different source of data like .csv, text file, also the contours data. Today, in sessions, we are going to understand how we can create a surface from those survey data. Also, we will see how we can create a grading also from the surface. Okay. Also, I will explain the surface label as well as the surface analysis. Okay, because once you create a surface, it is very important to analyze the surface as well. So, if you have any question in between, okay, you can ask me. Have you downloaded the Indian toolkit, sir? Hello, anyone? So I have just finished Hello. downloading the Autodesk Civil 3D. Currently, the Indian kit is being downloaded. Okay, fine, sir. Because it's very important. After that, like creating a surface, we need to use this country kit. If you don't have that one, then you are not able to apply the Indian style set. So first, just download this country kit style template. Okay. So I have a question. Can we use the 2024 country kit in 2022 Civil 3D? Yeah, definitely you can use it. Okay, okay. It is just a template. Okay, just remember it. Okay, so it is Once being you, downloaded. yeah, it is. If it is downloaded, then you can import any style set, any template in your current drawing. Okay, sir. I Okay. will explain you how you can import any type of the template in your current drawing and you can use in your current project. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, sir. I know the Chanchal sir and Parth sir, they take the classes last times. I don't know, maybe they are here or not. Yesterday, like they 20 peoples were there. Today is only just 6 people. Yes, Chanchal sir, आप कुछ बोल रहे थे? हेलो, Yeah, hello sir. We are always कैसे हो with सर? you, sir. आप तो सर कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं कब से नहीं नहीं बैठा नहीं हूँ कि एक्चुअली कुछ बोले एक्चुअली हैं आप लोग। नहीं 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 एक्चुअली क्या होता है बीच बीच में कुछ मीटिंग अभी जैसे गया था नीचे तो अच्छा, कुछ फिनांस आज के कुछ बाकी लोग इसलिए के मीटिंग में है क्या? हाँ हो सकता है क्योंकि बहुत कल सारा ऑलमोस्ट हाँ 20 अटेंड किए थे। हाँ चलो कोई नहीं, लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक। सर इस बार ना हम बेसिक और थोड़ा एडवांस भी देख लेंगे ठीक है ना जैसे ड्राइंग प्रोडक्शन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ होता है और उसके बाद ओके। वो जो नया 24 में 25 में मैं देखा ना जो देखा गूगल मैप से भी बहुत अच्छे से इंपोर्ट भी हो रहा है और वो बिंग हम्म। मैप का अपडेटेड वर्जन भी है लेकिन उसका बिंग प्रॉब्लम ये मैप था को। कि इंडियन हाँ बहुत सारा ऑप्शन जो कि ओके। उसका दिया गया है लेकिन जो मेन इसरी प्रॉब्लम मैप, था कि वो इसरी मैप का इंडियन आ गया। तीसरे में इंडियन किट हम्म। उसने इंस्टॉल नहीं मारा था फिर और एक प्रॉब्लम हम्म। ठीक है वो थोड़ा बहुत ट्वेंटी चीजें फाइव तो नहीं अभी आया नहीं है ना? 25 तो शायद अभी आया नहीं है कंट्री किट। नहीं, आप हाँ कंट्री किट नहीं है आपने कल बोला ना उसमें हो सकता है कुछ हाँ, आप इंस्टॉल 24 कर लो। और आप क्या हम्म, कर सकते हो, जो टैम्पलेट अभी जो मैंने दिखाया था, यू कैन यूज दिस हम्म, टैम्पलेट इनटू योर 2025। देयर इज नो इशू, इवन 2022 यू कैन import that style set. Okay, हम्म, I हम्म, will explain you how you will use it. So हम्म, yesterday we see the different source of data, right? Now what I will do, I will import the survey data, okay, and try to create a surface. Suppose this is the data we have. Okay, हाँ बेटा।
Now, hello, hello. Yes, yes. So suppose we have this survey data, okay, and first step is like to import the survey file into your the current drawing. Then you have to define the coordinates. So I'm just defining the coordinates is UTM 84 43N. Okay, and done. Now it is geo coordinated. Okay, you just check that one. You can use the ISRI also, like they are just provided the additional options. You can just turn on. So it is giving you more clear imaginary. Okay. You can compare like the Bing map and this the ISRI imaginary. If I turn on the Bing aerial, you can compare the images, resolutions basically. So which is your like a requirement, you can just turn on and you can take a photo frame for that. Suppose your requirement is this much area, you just capture the area. Even you can capture in the multiple frames. So this map is shown only because you have installed the country kit template. No, no, nothing to do with the country kit. It is 2025. So in 2025, what they did, they introduced the ISRI imaginary. Before till 2024, they have only the Bing map behind it. Oh, so if I suppose if I have a set of DGPS coordinates, so how do I Mm. place it on the map? For you are Uh, doing this with UTM coordinate system, right? right, right. So in So you want to in place the local coordinate. Basically, you're saying like if you have a local coordinate, then how you can place that, right? yes, sir, yes. No problem. You like here you have a UTM. Also, you have the local coordinate also for India. You select which is your requirement. What I'm not sure basically you about are the taking. requirements, sir. Actually, the coordinate system that we follow here at my side is Mm, DGPS coordinate system. So, mm. is there any specific, I mean, option where we can go and click it? No, only two way. Like either you can use the UTM or by using the country categories. You can go both way. There Oh, is okay, only sir. two way to just coordinate your the drawing. Okay, so I'll see. Hmm. If you share your screen, I can explain you like how you can coordinate. Right now, I'm are you waiting for on the the system? country kit to be installed, sir. Actually, just give me a while. I'll just share the Okay. screen Sure, little bit sure. later. Once it is installed, just let me know. So we will discuss that one also. So now Yeah. I'm just turn off this. Okay. Let's say our requirement is only this much. So you can do more settings for this. You can go very fine so that it will more clear.
Even you can bring the, high resolutions image in Civil 3D directly. If you have any benchmark, you can just copy your image and paste it here, and just place exactly the benchmark. Most of the time in the railway projects, we basically bring the high resolutions imaginary, right? TIFF file. Okay, so this is basically your reference image. If you have your own image, you can just copy, paste here, and just match with this image. Or you have the reference, then you can just place accurately with the any benchmark you have. Okay, so now delete this. Now come to the surface. Okay, so to create a surface, we have option here is just below the point group is surface. Okay, and I'm just selecting the normal point group surface. Okay, because we are going to create a surface from the point groups. So I'm creating a new surface, and here you have to understand this four type of the surface. First is thin surface. Basically, while you creating a tin means triangulation surface. So your points, your survey data points will connect each other as a triangular. If you are creating a grid surface, that means you are giving any specific distance between the grids, X and Y, and based on that grid distance, it will create a surface. Okay. And if you are comparing the two surface, we use the grid volume surface or the tin volume surface. If you are comparing two tins volume surface, then we use the tin volumes. Here you have one base and one is comparison. Okay. Most of the time this we use for earthwork calculations, right? Because we require the earthwork. So in that case, we use the NGL and our uh, the datum level of your the corridor. So now let's create a thin surface first. I am giving the name is NGL or OGL, you can say. And this is the style. Style is what? How you want to represent your the surface. Okay. You can see this is a contour 2 and 10. What this representing means that the minor contour is every 2 meter interval, and every 10th meter is your a major contour, right? So this is the style of representation of major and minor contours of the surface. If you want to change it, you can change it. Okay, like this. Now, if I change this into 1 to 5, I can change. Now, suppose after this, I will create a one surface. Then I will bring the Indian style set. Okay. So this is the surface, but why this surface is not created here? Anyone can explain me if you have any idea. Because we create the NGL, but there is no surface. Still, this is the only point. Anyone? If you have any idea? Okay, no problem. डेटा डेटा सेलेक्ट बिल्कुल करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, इसमें अभी क्या है, हमने जस्ट सरफेस का नाम दिया है। हमने ये उसको डिफाइन नहीं किया सरफेस में कि ये किस टाइप का हमारा डेटा है, राइट? तो ये एनजीएल हमारा सरफेस का नेम है, और इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर हमें हमेशा क्या करना है, डिफाइन करना है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी हैव, राइट? एंड आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है। आपकी ब्रेक लाइन हो सकती है, आपका कंटूर्स हो सकता है, आपका डीएम फाइल हो सकता है, आपका
ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट से मतलब है आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका कंटू यहाँ पे आप और देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस है, पॉइंट हो सकते हैं, लाइंस हो सकती है, आपका ब्लॉक भी हो सकता है, आपकी पॉलीफेस भी हो सकती है, 3D फेस भी हो सकता है, दिस आर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास अभी जो सरफेस हम सर्वे डेटा है, दे आर द पॉइंट ग्रुप्स। ओके, सो वी क्लिक ऑन द पॉइंट ग्रुप एंड सेलेक्ट ऑल पॉइंट्स एंड अप्लाइड। ओके, अब देखो कि सरफेस क्रिएट हो गया, राइट। अगर मैं 3D व्यू में देखूं तो यहाँ पे सरफेस क्रिएट हो गया, 3D सरफेस। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एडिशनल जो ये ट्रायंगुलेशन है, ये आप ये कंटूर्स जो देख रहे हो, अगर मैं इसको ट्रायंगुलेशन चेंज करूं, यहाँ पे स्टाइल में, एडिट सरफेस स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस स्टाइल के अंदर जो डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपको डिस्प्ले कराना है इस सरफेस के अंदर, वेदर इट्स अ ट्रायंगल विथ इट्स अ मेजर माइनर कंटूर्स, देयर डायरेक्शन, स्लोप, एलिवेशंस, उसको आपकी जो लेयर है उसको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। अदर थिंग इज दैट यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट आल्सो। लेट अस से, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबमिशन होता है ड्राइंग्स का, राइट, इंडस्ट्री में, वी प्रोवाइडिंग द कलर टू कलर for the major minor is, for major is this 251 and minor will be like this 254, right। हम इस कलर से उसको डिफाइन करते हैं, तो आपकी कलर भी चेंज होंगे, आपका क्या डिस्प्ले करना है वो भी डिस्प्ले हो जाता है आपके सरफेस के अंदर, राइट। अब सपोज मेरे को जो यहाँ पे ट्रायंगुलेशंस हो गए, लेट्स से टर्न ऑन द ट्रायंगुलेशन, जो ये ट्रायंगुलेशन है आपके जो एक्स्ट्रा फॉर्म हो गए हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ योर सरफेस, राइट। आपका सरफेस कैसा बनना चाहिए कि इट शुड बी नियर टू योर सर्वे डेटा, राइट। और if you have any ROW, then we can create a boundary from the ROW also. Okay, so anyone have any idea like how we can resolve this issue, because we have the additionally triangulations which is not required. इसमें जब लेंथ ऑफ ट्रायंगुलेशन की आप कम कर दीजिए, जैसे 50 मीटर 100 मीटर, तो आपका सही हो जाएगा डेटा। Right, but this is a linear, right? When you have the surface is the linear, and suppose you're getting the one surface is like this, then how we will do that? तब कैसे करोगे आप उसको, राइट। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, एक, हम कंट्रोल करेंगे इसको बाय मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ से। सेकेंड थिंग इज, इफ वी हैव अ मैनुअल बाउंड्री, सपोज वी हैव अ एग्जिस्टिंग बाउंड्री फॉर दिस सर्वे डेटा ROW, so we can restrict this triangulation based on the boundary। ओके, उसे बाहर नहीं जाएगा आपका ट्रायंगुलेशन। So first method is like we can go in the surface property, here under the definition, under the build, यहाँ पे देखेंगे कि use maximum triangle length is right now is no, so you have to click on yes and just give the value 50, 60, 70 depending कि आपको कितना maximum allowed करना है, and just rebuild the surface। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ के अकॉर्डिंग आपका नियर बाय जो सर्वे डेटा था वहां पे आपका बाउंड्री बन गया। सो दिस इज द वन मेथड जिसमें आपका एंटायर सरफेस की बाउंड्री बन जाएगी। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ मैनुअल बाउंड्री, ओके, लेट मी डू द कंट्रोल सेट। सपोज इफ वी हैव अ मैनुअल, ओके, बाउंड्री, suppose we have this one boundary, okay, this is a boundary,
मुझे इतने सरफेस की रिक्वायरमेंट है, आई डोंट वांट द एंटायर सरफेस. ओके, so we can restrict our surface within this boundary. So how we can do that? Here is the one option is called a boundary, and just click on add, just select OK, and select the object. So now your surface is reduced, and only this much is your surface is created. Okay, so आप दोनों तरीके से आपके सरफेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. सपोज आपका यहाँ पे एक ब्रिज है, फॉर एग्जांपल, कुछ इस टाइप से बॉक्स कलर या ब्रिज बना देते हैं. सपोज इस पार्ट को आपको हाईलाइट नहीं करना इस सरफेस में, यू जस्ट वांट टू हाइड दिस पार्ट विद इन द सरफेस, तो भी आपके पास ऑप्शन है. अंडर द बाउंड्री वी हैव ऑप्शन इज कॉल्ड हाइड. इफ आई सेलेक्ट दिस, यहाँ देखोगे ये जो सरफेस था ये आपका हाइड हो गया यहाँ से. So you can create a surface or you can hide the surface also within the surface. Okay, this is now not a surface, this part. You have a points, right? If I delete this and rebuild, तो आपका जो पूरा सरफेस था वो एज इट इज आ जाएगा. Now I can remove it. Okay. Second thing, अगर लेट्स से आपको कोई भी जो स्टाइल सेट है जो हमने इंडियन टूल किट में देखा, अगर उसको इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? वी हैव. मीना सर, इसमें इसमें एक यस क्वेश्चन है सर. मेरा। हाँ जी ये जो सर, पॉइंट पूछिए आपने पार्थ सर. हाइड किया, ये जो हाँ हाइड हाँ. किया, ये एक्चुअली हाइड होता है कि उस पोर्शन डिलीट होता है? क्योंकि मैं अगर वहां पे क्रॉस ओनली सेक्शन हाइड ड्रा कर होता रहा है, हूँ। ओनली हाइड होता है, अच्छा, हाइड होता है. तो मान लीजिए मेरे को उस डिल पोर्शन डिलीट करना है, तो हम्म क्योंकि डिलीट इसलिए करना है क्योंकि जैसे मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रिज पोर्शन में या लॉन्ग हम्म सेक्शन, तो उस पोर्शन में ना मेरे को हम्म सीधा वर्टिकल चाहिए, क्योंकि उसको अगर ट्रेंगुलेशन होगा तो वहां से मतलब उस जगह का ट्रेंगुलेशन सही नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर रहेगा, हम्म क्योंकि वहां हम्म पे नीचे से पानी भी जाएगा ना। तो उस केस में हम्म. कैसे करें? उसमें ये उसको हाइड डिलीट आपका काम तो कर कर देंगे। जाएगा. नहीं, नहीं, उसमें हाइड आपका वो करके मैं हाइड अगर काम कर जाए. क्रॉस सेक्शन जनरेट करूंगा ना, नहीं, फिर मान इट्स, लीजिए क्रॉस सेक्शन देखो को मैं, पॉइंट आ जाएगा, तो फिर उसमें ले लेगा क्या? नहीं आएगा. ये देखिए, हाइड का हाँ। मतलब वो आपका उस सरफेस को वहां पे कंसिडर नहीं करेगा. हाँ। सपोज ये है आपका, ठीक है, ये आपका आ गया. यहाँ पे आपका सरफेस ही नहीं दिखेगा आपको. ये सरफेस नहीं दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में वो सरफेस नहीं आएगा तो? हाँ बिल्कुल. आपका देखिए, मैं अब यहाँ पे हम्म। एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल अभी. हम्म। 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 ये देखिए, हट गया ना. हम्म। 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 ओके, ओके। ठीक है, जब इसको रिमूव करना, जस्ट रिमूव इट, दैट्स सिंपल, एंड रिबिल्ड द सरफेस. Okay, now let us say you just want to import the style set of the Indian toolkit. Okay, I am using 2025. Okay, but I just want to import 2024 the country kit style set. Let me delete this alignment also. So first you have to save this file. Let's say under. हमको लग रहा है सर, now under the manage tab, here is a option is called import style. Okay, and this is the country kit 2024 I have. Okay,
this is a template. You can see this is a template .dwt file. And I just want to import all the style set for point, surface, parcels, which they're creating for a Indian projects. Okay. So I click OK, click OK. Okay. Now, if I check that styles, if I go into the surface properties, information, and if drop down, you can see all the Indian style set is appear here. Okay. जो भी उसके अंदर स्टाइल थी वो आपके यहाँ पे आ जाएगी. No need to create the new one. If you want to modify something, you can just select from here and just make it a modification. Okay. देखिए पहले वहां पे वाटर सेट नहीं था, हमारे पास वाटर सेट का आ गया. नो नीड टू क्रिएट आवर ऑन वाटर सेट स्टाइल सेट. So let's say I will go with 1.5 design. Okay. $60. Okay. So this is the way you can able to create your outer boundary, or you can import your the country kit style templates. Okay. Now, suppose you want to delete the surface triangulations, or you want to add the new line of the triangulations, you want to extend little bit at this particular area, then how you can modify this the surface. Okay. So for that you have to first display the triangulations, because if you want to try to delete the major minor contour, turn on, and you try to delete the triangulation, that is not possible. To modify your the surface, first you have to turn on the triangle, because your surface is created based on the triangulations. Okay. So any location we will take. Suppose here I don't want this line of the triangle. So we have the option is called edit surface. Okay. And here is option is called delete line. So if I select the line and just press enter, that line is deleted. Okay. Suppose this line you don't require, just delete that line. If you want to add the new line, let us say you want to add it between this and this point, then the new line is created. Okay. Suppose from here to here, again you want to add, the new line is created. If you want to again delete, you can delete it. Now suppose you want to modify more things, like you want to add any new point. Okay. You have to define the elevation. Click the new elevation. I don't know the elevation, so let me turn on the elevations, or we can check. Suppose this is near 83.629 and this is 76 point something. So I will take the new elevation is somewhere here is 80. Okay. So you can add the new point. Okay. You can delete the point as well. Also, suppose
you want to increase the total surface by 1 meter, or you just lower down the your surface by 1 or 2 meter, then this is also possible. Okay, here is the option like raise and lower the surface. So if you want to increase the entire surface, you have to give in the positive value. If you just lower the value, then give the value in the negative direction. How much? Like 1 meter, 2 meter. So if you change it, your the entire surface will raise or lower down. Okay. And one more thing which is very important is here is option is called a paste surface. Suppose you have multiple surface, okay, uh, and you want to combine all the surface in a single surface, then how you can do that? Now I will split this surface into three surface, okay. So first let me delete this rectangle and I delete this. Your boundary should be closed, okay. So let's say second surface is this, and third surface somewhere here, okay. So now I will create three surface. First one, border is okay. First I will create the surface, and by using a boundary I restrict the surface first, this. Similarly I will create one more surface, 2, again create a surface, and this time restrict with the boundary number 2. This is third, and you can restrict with third boundary. Okay, now suppose you have these three different stretch surface, okay, 1, 2 and 3, and you want to combine all these three. So just create one more surface, and let's say combine surface, under the definition here is option called edit, and under this you have option is paste surface, okay. So now we have 1, 2, 3, all three surface. So if you have a multiple like 10, 20, any number of surface, you can combine all the surfaces, okay. So I just want to combine all these three, so click OK. Now if I select this combine surface, all three surface is selected, okay. If I select second number, then only the second one is selected, okay. So this way you can able to make a combined surface. If we can see in the 3D also, so our three stretch of surface is
combined. If you have any questions, you can ask. किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना है? सर इसमें आपने अभी तक ओजीएल को इंपोर्ट नहीं किया है ना सर? नहीं सर, हमारा ओजीएल बन चुका है ना। नहीं नहीं, अभी आपने जैसे इसको डिलीट कर दिया था तो ये ऑलरेडी उसमें है, बस आपने उसको हाइड करके रखा हुआ होगा। नहीं सर, मैंने 3 सरफेस बनाए, अगर आपने देखा होगा। जी जी एक जी। दो तीन, 3 सरफेस बनाए थे मैंने। जी। इनको मैंने विद बाउंड्री रेस्ट्रिक्ट किया कि एंटायर सरफेस ना बने, सिर्फ इतना ही फर्स्ट जो मेरा सरफेस होगा वो इतना ही बनेगा बेस्ड ऑन दिस बाउंड्री। तो ये ओके। मेरा इतने सरफेस का ओजीएल मेरा ये है। ग्रीन लाइन दिख रही है आपको? ओके यस। जी। ये ग्रीन लाइन जो मेरा फर्स्ट सरफेस का ओजीएल है, ये सेकंड का ओजीएल है, ये थर्ड का ओजीएल है। अगर मैं सिंगल सिंगल सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पहले वाली सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ यही वाली हाईलाइट हो रही है। आपको ऊपर भी देखोगे तो टिन सरफेस वन सेलेक्ट है। अगर मैं इसको 3D में भी देखूंगा तो सिर्फ इतना ही पार्ट मेरे को दिखेगा, राइट। अगर ओके। मेरे को कंबाइन करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीपल सरफेस, राइट, जहाँ पे आपको ओजीएल भी होगा, आपका फिनिश ग्राउंड लेवल भी हो सकता है, आपका ग्रेडिंग भी हो सकता है, आपका कॉरिडोर का टॉप भी हो सकता है, बॉटम सरफेस भी हो सकता है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है यू कैन कंबाइन ऑल द सरफेस, राइट। ओके सर। तो हेलो। इस तरीके से आप उसको पेस्ट कर सकते हो, एक ही सरफेस में कंबाइंड सरफेस बना सकते हैं आप। हेलो यस। सर, ये आपने 3 जो सेपरेट सरफेस बनाया था, क्रिएट किया, इसको यस कंबाइन यस। करने के लिए क्या ऑप्शन बताया था आप? इसमें कंबाइन के लिए सर, यहाँ पे जैसे आपको एक नई सरफेस बनानी है कंबाइन कर, राइट। ठीक है, इसमें कंबाइन का ही नाम दीजिए उसको। हाँ, उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ही एडिट एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ओके। एडिट वाला। इस एडिट के अंदर आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ही आपके पास में ऑप्शन आएगा यहाँ पे पेस्ट सरफेस का। ओके। ओके। तो जैसे राइट। इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जितनी भी आपने सरफेस क्रिएट की होगी वहाँ पे आपके इस हम्म। वर्किंग स्पेस में, वो लिस्ट आ जाएगी आपके पास। आप उनको सिलेक्ट कर लेना और उससे ठीक है। जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपकी बन जाएगी, ओके राइट। सर, थैंक यू। ओके। सर इसमें एक चीज आप बना सकते हो कि जैसे मेरा कॉन्टूर है, तो 2 मीटर और हम्म 5 मीटर इंटरवल में मैं उसको कॉन्टूर में दिखा सकता हूँ, डायनामिक होता है ना। तो उसको जैसे मैं हम्म एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद वो जो वैल्यू है 2 मीटर 5 मीटर, जो जो लेवल है, ऊपर लेवल है ना, एक एक कॉन्टूर का जो लेवल है, वो हम्म। तो डायनामिक होता है, उसको देख सकते हो प्रिंट करके क्लाइंट अगर देखना चाहे तो। उनका हाँ, रिक्वायरमेंट ऐसे कंटूर रहता को है लेकिन। एक्सपोर्ट करके आप चाहते हो कि कंटूर्स की लेबल देखें। लेवल देखिए, हाँ। हाँ, लेबल तो हम डिस्प्ले करते हैं ना। वो तो डायनामिक होता है ना, हाँ, डायनेमिक ही होगा ना सर वो तो। तो आप उसको देख मैं सकते हो प्रिंट ना कैसे लूँ? उसको। हाँ, उसको उसको प्रिंट कैसे आप लूँ? डिस्प्ले करा सकते हो ना सर उसको। ओके, मैं वो बता देता हूँ, जब लेबलिंग का पार्ट आएगा हाँ अभी, तो नेक्स्ट जो हमारा हाँ वो लेबलिंग का, ये कंटूर्स लेबलिंग। ओके। हाँ। ये तो हमारा था इसमें लीनियर और एक सरफेस। हम्म हाँ हाँ हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन बताइए मेरा बताइए। है। जैसे मान लीजिए मैं सर्किट क्रिएट किया, मेरे को एक ड्रेनेज का प्लान बनाना है, ठीक है। तो जो ठीक है। मैं मेरे को देखना है कि जो वाटर है, तो मैं यहाँ से हम्म वाटर ड्रॉप को उसको चला के देख सकता हूँ कि मेरा स्लोप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और हम्म सारा वो स्लोप लेके कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऑटोमेटिकली? वो वाटर ड्रॉप से ही हो सकता है सर। जो वाटर ड्रॉप हम एनालिसिस करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा एनालिसिस पार्ट में, हाँ, कि जो वाटर ड्रॉप एनालिसिस होता है उससे हम हाँ, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट जो हमारे सरफेस में है वो लोएस्ट लोअर साइड में है, लोवेस्ट है लोअर साइड में बेसिकली, है। हाँ राइट। हाँ तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ। हमारा जो वाटर का एकोमोलेशन होने वाला है, वाटर लॉगिंग जो एरिया है वो कौन सा आएगा हमारा, हम्म, राइट। हम्म, हम्म, ठीक है, ये तो लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हम्म, आपका एक लीनियर प्रोजेक्ट है। मैं अब एक हम्म, और सरफेस लेता हूँ विच इज इरेगुलर शेप, राइट। हम्म, हम्म, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक वन मोर। आज मॉर्निंग में हमने निकाला था। हम्म,
क्या विशाखापट्टनम का था ये? एक ये लेता हूँ मैं, एक हिल एरिया का भी लेता हूँ। ओके, ये इंफ्रा वर्क का मॉडल है। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे विशाखापट्टनम की कोई रेलवे यार्ड था, यहाँ पे रेलवे जंक्शन का कुछ है, वो वाला लोकेशन है यहाँ पे। ये जो सरफेस है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंफ्रा वर्क इटसेल्फ। ओके, एक और लेता हूँ मैं, इंफ्रा वर्क का ही, बट दिस इज हिल एरिया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक कैसे वर्क करता है आपका। नाउ वी हैव थ्री सरफेस। ओके, एक आपका ये हिल एरिया है, अगर मैं इसको आपको ऑब्जेक्ट व्यूअर में दिखाऊं। ठीक है, तो इसमें बहुत इजीली आपके जो वाटर ड्रॉप है उससे आपको आइडिया लग जाएंगे, क्योंकि फ्लैट एरिया में तो इतना ज़्यादा नहीं बनता, बट फिर भी आपको वो स्पॉट मिल जाएगा। राइट, ये वाला जो है ये भी मोर और लेस फ्लैट एरिया है। कुछ जगह पे है हिली टाइप का थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे ये कुछ कंटूर्स बन रहे हैं आपके, जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा रेज हो रखा है यहाँ पे भी है, बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया है, बीच बीच में अंडुलेशंस है यहाँ पे। ठीक है। सर सर यस। सर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि आपने टोपोग्राफी को कैसे इसको इंफ्रावर्क में डाला है, मतलब ये क्या गूगल अर्थ प्रो से लिया गया है सर? नहीं नहीं सर, ये इंफ्रा वर्क से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली हमने सुबह मॉर्निंग में एक्सट्रैक्ट किया था, ये 3D सरफेस है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये इंफ्रा वर्क एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोडेस्क का ही है ये। तो इसमें क्या करते हैं, आपके सपोज आप यहाँ पे बैठे हो गुड़गांव में आपके ऑफिस में, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे आपको मिला है, या फिर कहीं नॉर्थ में कहीं भी कोई किसी लोकेशन पे मिला है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, और कोई भी सर्वेयर से लेके आपको डेटा नहीं चाहिए, इनिशियली जो अब आपको कंसेप्चुअल मॉडल पे ही काम करना है, राइट, इनिशियली स्टेज पे जहाँ पे आपको जस्ट देखना है कि आपके कहाँ से रोड जा सकता है, आपके क्या क्या वहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे, क्या उसके एलिवेशंस रहते हैं वहाँ पे। तो एक इनिशियली स्टेज पे जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको एनालिसिस करने के लिए जो आपका एक रफली एस्टिमेट आता है, वो हम इसमें कर सकते हैं। राइट, तो वो कैसे करना होता है कि यहाँ पे जैसे एक बिल्डर मॉडल बिल्डर होता है, तो वेरी सिमिलर टू लाइक आपका जो गूगल अर्थ पे आप जैसे सर्च करते हो, वैसे ही इस पे लोकेशन को सर्च करना होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये क्या होता है कि आपके पास में सपोज कोई KMZ फाइल जो कि आउटर बाउंड्री है किसी भी प्रोजेक्ट की, आप उसको इसमें लेके आ सकते हो। मैं दोनों ही मेथड दिखा दूंगा। राइट, मुझे कोई भी एक लोकेशन बता दी सर आपकी जो आप देखना चाहते हैं। आप सर ब्रजराज नगर झारसुगुड़ा सर्च कर सकते हैं। ब्रजराज सॉरी नगर, सर। ब्रजराज नगर स्टेशन, BR, ब्रजा। हाँ हाँ, ब्रजराज, बी आर BRAJ। ब्रज। हाँ अच्छा, हाँ, ये ठीक है, वाला स्टेशन। ओडिशा। ठीक है, ये वाला स्टेशन की बात कर रहे हैं आप। जी सर जी। इसका ये NH है, जी सर, नीचे की ये तरफ आएंगे वाला तो हमारा एक स्टेशन, प्रोजेक्ट है एक्चुअली जो ये चल रहा है। वाला, जी। ये ये ब्रजराज यही है नगर रेलवे स्टेशन स्टेशन जी। है आपका। ठीक है, जी जी। तो एक ये यहाँ पे एक और स्टेशन आपका, ये इव भी शायद, स्टेशन। ये ब्रिज, हाँ ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सपोज आपको इतना ही एनालाइज करना है फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मोबाइल से कनेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक, या तो आप गूगल अर्थ पे ही आपका जो आउटर बाउंड्री है उसको लोकेट कर लें। ठीक है,
या फिर यहाँ से आप पॉलीगन से जितना एरिया आपको चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रोजेक्ट बाउंड्री बन गया। जी। कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, मेरा ही वॉइस इको हुआ होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट बाउंड्री है। अब ये मैंने मैनुअल बनाया। अगर इसी की जगह फॉर एग्जांपल आपका इसी को हमें केमजेड से भी लेके आना है, ठीक है, जी तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको गूगल अर्थ पे जाना होगा। नाउ लेट्स से ब्रिज राज BRAJ। उड़ीसा रेलवे स्टेशन। हाँ, आगे सर। ये वो वाला लोकेशन है, राइट, जिसकी हम बात कर रहे थे। जी सर, जी सर। अब यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट का बाउंड्री तो मिला होगा सर, आउटर बाउंड्री। जी जी जी। ठीक है, जैसे ये रेलवे का यहाँ पे कोई ब्रिज भी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला जा रहा है यहाँ पे, ये यार्ड जी आई सर, जी थिंक। सर। यही एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, यार्ड पे काम कर रहे हो क्या? जी जी जी। ओके। एक्चुअली हम भी रेलवे के काफी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सऊदी में। ओके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको इस लोकेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जी इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ सर मैं ना, जहाँ पे जी आपको कंसेप्चुअल में मान लो कोई ट्रैक, न्यू ट्रैक है, आपको उसको डाइवर्ट करना है, या फिर कुछ आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर्स बनाने हैं, या प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पे कुछ एक्सटेंड करना है, तो इस टाइप से ना जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उस बाउंड्री को, जो भी आपका प्रोजेक्ट बाउंड्री है, यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर देंगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी वो बाउंड्री मिला होगा, जी तो जी। आप वो डायरेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं इसको अपना वो प्रोजेक्ट बाउंड्री मान लेता हूँ, ब्रज राज। ओके, इसको क्या करना है आपको, पहले सेव कर लेना है एज ए प्लेस। यहाँ पे आप देखोगे सेव प्लेस एज जी आएगा, जी। एंड यहाँ पे ब्रजार नगर के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, डेटा सेट के अंदर रहेगा। अब क्या करना है आपको, सिविल 3D में जाना है पहले। जी यहाँ पर आप देखोगे कहीं पे भी आपको केमजेड का इंपोर्ट नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप जाओगे, होम टैब पे जाओगे, इंसर्ट टैब पे जाओगे, बाकी कहीं पे भी देखोगे आपको वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे देखते रहते हैं कि कहाँ से मैं केमजेड फाइल को इंपोर्ट करूँ। तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, मैप जी सर, इंपोर्ट। नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये मैप इंपोर्ट कमांड से आपका क्या होता है, जो भी कोई केएमजेड फाइल, केएमएल फाइल है, वो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रजनाथ नगर आपका जो है मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था, इसको ओके करेंगे। एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेक कर लेता है, गेस ये 44 होना चाहिए। 44 ही है, हाँ, एज पे है ऑलमोस्ट। यूटीएम 8444N। ठीक है, क्लोज कर देंगे बाउंड्री। ओके, अब हम इसको देखेंगे। देखिए ये बाउंड्री बनाई थी हमने, राइट। जी सर। इसको चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये हमारा केएमजेड फाइल प्लेस हो गया वहां पे जहाँ पे हमने इसको बाउंड्री बनाया था, राइट। ओके सर, ओके। अब इसका इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको डॉट इसरीफ से फाइल के अंदर, राइट। तो उससे पहले एक कमांड और आपको इसमें करना पड़ेगा, एम पॉलीगॉन। ये किया, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको किया, प्रेस एंटर, क्लिक ओके। अब करना है आपको मैप एक्सपोर्ट।
इसका नाम दे देंगे ब्रिजराज स्टेशन। क्लिक ओके। पॉलीगन है तो पॉलीगन सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। क्लिक ओके। इसमें देख लेना है आपका जो कोऑर्डिनेट है वो सही है कि नहीं यहाँ पे। देन क्लिक ओके। अब क्या करना है आपको, अगेन इंफ्रा वर्क में जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए जो मैंने एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट किया है बाउंड्री, राइट। डेटा सेट, आई गेस ये था सैंपल डेटा। या ये यहाँ पे देखेंगे ब्रजराज स्टेशन है एक, इसको सेलेक्ट करना है। दूसरी डॉट पी आर जे एक फाइल और बनी है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है एंड जस्ट ओपन। तो ये जो न्यू बाउंड्री मैंने वहां बनाई थी केएमजेड पे, ये कोई भी बाउंड्री हो सकती है, आपकी हाईवे की भी हो सकती है, आपकी रेजिडेंशियल बाउंड्री भी हो सकती है, कुछ किसी भी प्रोजेक्ट की बाउंड्री हो सकती है, राइट। तो आप राइट। इस तरीके से कोई भी केएमजेड फाइल होगी उसको डॉट सेव फाइल बना के आप इंफ्रावर्क में ला सकते हैं। अब अभी तक आपका जस्ट इमेजिनरी दिख रहा होगा, इंफ्रावर्क क्या करेगा, अब ये जो सरफेस जो हमने बाउंड्री बनाया है इसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा इन 3D मैनर। आपका एलिवेशन भी आएगा उसके अंदर। तो मैं इसको ब्रजराज स्टेशन के लिए कर लेता हूँ। ओके। सो इट विल टेक फ्यू मिनट्स और वो आपका यहाँ पे मॉडल बन जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक मॉडल बनेगा मैं आपको एनालिसिस पार्ट दिखा देता हूँ, राइट। ओके। इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स, इट डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अभी तक आप सर ओपन सोर्स कौन सा यूज करते हैं सरफेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए? उसका सर थोड़ा नॉलेज नहीं है मुझे, बस फाइल मिल जाता है बस, उससे हम करते अच्छा, नहीं एक तो होता है सर जो सर्वे, एक्चुअल सर्वे होता है, ठीक है, हैं। जो आपका एक्चुअल साइट का जो भी एलिवेशंस होगा, जो डेटम होता है वो आपको मिलता है। एक जी। जो इनिशियली स्टेज पे जहां पर आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, कि आपका रेलवे का ट्रैक कहाँ से निकल सकता है, उसके पास और कितना लैंड हमारे पास अवेलेबल है, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में वहां पे अवेलेबल है, प्रोजेक्ट में हम कैसे उसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। वो जो सारी चीजें हैं वो आपके जो कंसेप्चुअल जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो हम इसमें करते हैं इंफ्रावर्क के अंदर। क्योंकि इसके अंदर आप मास्टर मॉडल भी बना सकते हो ना। आपके पास में कोई रेविट की टीम है जो कि आपके स्टेशंस को बना रही है, रेलवे स्टेशंस को, राइट। आपके दूसरे जो भी कोई बिल्डिंग्स के हैं वहां पे उसको बनाएगी। आपका जो सिविल 3D में जो आपका रेलवे इंजीनियर होता है वो आपका रेलवे ट्रैक बनाता है, तो उसका वो 3D मॉडलिंग में बनता है। उसके अलावा ब्रिज इंजीनियर है तो वो ब्रिज बनाता है। तो वो आप क्या कर सकते हो, उनको कंबाइन कर सकते हो एक ही मॉडल के अंदर, विच इज अ इंफ्रावर्क। और आप फाइनली क्या करते हो, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आप एक वीडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका एक मोर रियलिस्टिक रेंडरिंग कर सकते हो उसका। तो जो सिमुलेशन सर, जन सिमुलेशन के बारे में आप बोल रहे हैं? भैया आप बोल सकते हो सिमुलेशन भी, टाइप का सिमुलेशन तो आपका एक बेसिकली रिजल्ट टाइप हो जाता है, रिजल्ट नहीं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हायर अथॉरिटीज होती हैं, राइट, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, नॉर्मली आप पिक्चर्स में प्रेजेंट करते होंगे प्रोजेक्ट को, राइट। ठीक है, कि राइट। हमारा यहाँ पे बिल्डिंग है, हमारा ये है। बट आज के टाइम पे क्योंकि सब लोग बिम पे काम कर रहे हैं, राइट, तो हम राइट। लोग अब ऐसा नहीं करते, हम लोग जनरली 3D मॉडल बनाते हैं। 3D मॉडल को ही हम वहाँ पे एज अ वीडियो फॉर्मेट में वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैसा बिल्डिंग वहाँ दिखेगा,
क्या क्या फैसिलिटीज उस बिल्डिंग में होगी, आप पिक्चर में वो सब चीज नहीं दिखा सकते। बट आप जब राइट सर। उसी चीज को आप वीडियो फॉर्मेट में 3D मॉडल्स के साथ दिखाते हो तो इट इट विल मेक अ लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट, राइट, जो भी आपके टेंडरिंग पे जब करने जाते हैं। तो जैसे कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, मेजर ब्रिजेस हो गए, तो हम्म। उनको सब हम्म। मॉडलिंग कहाँ करना ज्यादा प्रेफरेबल है, इंफ्रा वर्क में या रेविट में? नहीं सर, सर वो रैबिट में ही होता है। ठीक है, वो आपका जो मॉडलिंग पार्ट होता है, जो डिटेल डिजाइन है, वो डिटेल डिजाइन सॉफ्टवेयर में ही होंगे। बट जो, क्योंकि अब रेविट में क्या, आप सिविल 3D की फाइल एक लिमिटेड तक कुछ चीजें लेके जा सकते हो, और आपके पास में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे कि ओपन ब्रिज है तो वहां से भी आप रेविट में नहीं लेके जा सकते। तो इंफ्रा वर्क को ही बनाया ऐसा गया है कि आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर के जो ऑब्जेक्ट है उसको लाके एक मास्टर मॉडल बना सकते हो, यानी कि कंबाइंड फॉर्मेट में बना सकते हो उस चीज को। अच्छा, तो राइट। इंफ्रा वर्क बेसिकली मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? मॉडलिंग नहीं, नो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। It is ओके like a ओके conceptual or representation of your the entire project. ओके, गॉट इट। Right. यू कैन कंटिन्यू सर। Yes. Okay. ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं, राइट। सपोज आपके पास में ये एक सरफेस है जो हमने विशाखापट्टनम का लिया था, नहीं, ये तो सर केदारनाथ है, ये विशाखापट्टनम है। ओके। अभी इसमें एनालिसिस क्या करना है, मुझे चेक करना है कि कौन से रेंज में कितना एलिवेशन होगा, और कौन सा लोअर साइड में होगा और कौन सा हायर साइड में होगा, राइट। मुझे देखते ही पता लग जाए कलर कोडिंग से कि कहाँ पे मेरे को अपना जो एम्बैकमेंट है वो रेज करने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे उसको लेवलिंग करने की जरूरत है, राइट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास में, यहाँ पे देखेंगे सरफेस प्रॉपर्टीज होती है। इस सरफेस प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाओगे फर्स्ट तो इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में आपका यहाँ पे देखेंगे कि स्टाइल सेट बने हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे एलिवेशन का भी है, स्लोप का भी है, बट वाटर सेट का नहीं है, जबकि आपके जो इंडियन स्टाइल सेट था उसमें वाटर सेट था, आपने देखा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगेन जो आपकी इंडियन स्टाइल सेट थी उसको इंपोर्ट करवा लेंगे। तो पहले मैं एलिवेशंस मुझे चेक करना है, तो आई विल सेलेक्ट द एलिवेशन बैंड स्टाइल, देन गो टू द एनालिसिस पार्ट। एंड यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप के एनालिसिस है सरफेस के, क्या क्या है, आपके कंटूर्स चेक कर सकते हो, आपके एलिवेशंस कर सकते हो, आपके डायरेक्शंस चेक कर सकते हो, आपके स्लोप हैं, स्लोप चेक कर सकते हो कि कहाँ से मिनिमम होगी कहाँ पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद में आपके पास में स्लोप एरो से चेक कर सकते हो कि किस साइड में आपका स्लोप का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा। एंड देन फाइनली आपको वाटर साइड से चेक कर सकते हो कि कहाँ पे एक्युमुलेशंस, आपके कैचमेंट एरियाज कैसे बनेंगे वहां पे, राइट। तो फर्स्ट वी विल चेक द एलिवेशन, यहाँ पे एलिवेशन ले लेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे रेंजेस के अंदर, तो रेंजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कलर कोडिंग, आप इस एंटायर सरफेस को कितने डिविजन्स में आप इसको डिवाइड करना चाहते हो। लेटस से मैं इस एंटायर सरफेस को 10 डिफरेंट कलर्स में, कलर स्कीम में इसको डिवाइड करना है मुझे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे रन को, यहाँ पे देखेंगे आपका जो मिनिमम है और मैक्सिमम है, यहाँ का एलिवेशन जो मिनिमम है आपका वो -11 का है, और मैक्सिमम आपका 29 मीटर का एलिवेशन है, राइट। और इनका कलर कोडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रहता है। आप इसके रेंज को भी चेंज कर सकते हो, लेटर से आपको -11 टू 0 चाहिए, देन 0 से 3, तो ये मैनुअली यहाँ से आप चेंज करोगे तो वो चेंज भी हो जाएगा। लेटर से मैं इसको 0 कर देता हूँ, बट डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 फिनिश किया तो यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 यहाँ फिर 3, तो ये ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, जो भी ये रह जाएगा, राइट। तो 0 से यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ, बाकी को कंटिन्यूस रखूंगा। जस्ट अप्लाई, क्लिक, ओके। तो ये देखिए मेरा जो पूरा सरफेस था वो कलर कोडिंग से यहाँ पे आ गया, राइट। अब मुझे इसके लेजेंड्स चाहिए दैट विल रिप्रेजेंट दिस कलर कोडिंग, ठीक है, ताकि आपको आइडिया यहाँ पे आपको टेबल से ही पता लग जाए कि आपका क्या एलिवेशंस होगा उस रेंज में, राइट। तो टू ऐड द लेजेंड्स सेलेक्ट करना है यहाँ पे सरफेस को, एंड ऐड द लेजेंड। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, हम एलिवेशंस की बात कर रहे थे, एलिवेशन को सिलेक्ट करेंगे। टेबल जो आपका होना चाहिए वो डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसके जो नंबर ऑफ रेंज है
उसको चेंज करते हो, सपोज फ्रॉम 10 to 5 पे करते हो, तो आपका टेबल भी ऑटोमेटिकली वो चेंज होना चाहिए। इफ यू सेलेक्ट द स्टैटिक, तो क्या होगा, आपका कलर कोडिंग तो चेंज हो जाएगा नंबर 5 में, बट आपका टेबल वो 10 ही शो करेगा। तो इससे बेटर है कि आप हमेशा डायनेमिक इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट प्लेस हियर। अब इस लेजेंड से मुझे, टेबल से मुझे पता लग रहा है कि जो रेड कलर है यहाँ पे, दिस इज द लोवेस्ट वन, ठीक है, जिसका एलिवेशन 0 और -11 है। तो दिस इज द एरिया कि जहाँ पर आपका जो लेवलिंग करने की जरूरत है बेसिकली, क्योंकि ये लोवेस्ट साइड में है, तो वाटर आपका ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा। और मैक्सिमम आप देखेंगे तो ये है आपका, जिसकी 29 एलिवेशन है, राइट। इवन इसके जो एरिया है वो भी कैलकुलेट करके दे दिया है, हाउ मच इज द एरिया, राइट। तो दिस इज द एरिया वेयर द वाटर विल accumulate, this area, and this is the highest elevation side, this okay। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं स्लोप। ओके, so again go to the surface properties, and from here you have to select the slope band. Again go to the analyze tab, and you can select the slope arrow, or and let's say 5 this time. Click OK, apply, okay, and turn on the style set of slope arrow. Okay, we don't have this style set of slope arrow here, so I will bring that style set. तभी वो दिख नहीं रहा है। Save the file first. That says 7 drawing. So just one more thing I wanted to ask. Yes, sir. Sure. In that vast area, how have you, obtained so many elevation points? What technology have you used? Have you used LiDAR in this? They just divided based on the elevations. Like they within a civil 3D they get the points, right? In which area, what is the elevations at that particular locations. So based on that, we segregate the different points, elevations basically, right? Yeah, yes, sir. You But can then in some way or other, you have done the survey in that particular area, no? Mhm. So what is how have you used the survey technology? What kind of survey has been done in this particular area? Because in such a vast area, you have taken so many points, right? Hmm.
So what is the technology? Have you used No, protestation this is or TLS no, survey? this is no, this is not that survey, sir. This is the survey. This is surface is extracted from the infra work. There is not survey. Anything is done in this one. They are extracted from the Okay, infra okay, work itself, okay, right? okay, okay, okay. सर From the इसमें Google Earth photo, you have exported the file to InfraWork, and then InfraWork has enhanced it into a 3D model, right? So that is Yes, how yes, you have and calculated the elevations. yeah, exactly. He just extract the data from their technology, basically, you can say. So Okay. they giving the elevation based on the DTMs available for their software. I don't know what inside their technologies they using to Yeah, extract the data, yeah, yeah. So right? basically, the InfraWork has extracted all these elevations, na? Yeah, exactly. Okay, okay, okay. सर इसमें कौन सा That's why I'm saying. यूज हुआ है? क्या जो सर? सारा सेटेलाइट डेटा है ना, मतलब कौन सा डेटा यूज हुआ है, मतलब जैसे कार्टोसेट सेटेलाइट का है या एसआरटीएम डेटा है, कौन सा डेटा यूज करते हैं? सर वो तो ऑटोडेस्क ही बता सकता है सर, उन्होंने क्या बैकग्राउंड में किस चीज को रेफरेंस लेते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये उनका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो सैटेलाइट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीटीएम जो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उनका टेक्नोलॉजी आई डोंट नो इनसाइड सॉफ्टवेयर वो क्या यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए। बट मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा कि जो भी डेवलपर टीम्स होते हैं, बिकॉज दे नो मोस्टली दिस थिंग्स, उन्होंने बनाया होता है के अंदर का। अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता मैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज। जैसे भुवन वगैरह करता है, इसका कार्टोसेट डेटा यूज करता था, और हाँ सर, ऐसे तो SRTM। ओपन सोर्स भी करते हैं ना, बट हम बता नहीं सकते हैं सर ओपन सोर्स में भी कहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ वही चीज है ना, ये तो वही कमेंट कर सकते हैं सर ऑटोडेस्क की कि ये जो डेटा इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, वो डेटा कहाँ के डीटीएम्स कैसे किस टेक्नोलॉजी से डीटीएम उठा रहे हैं, राइट? एंड दिस इज फॉर अ कंसेप्चुअल पर्पस, आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस इज यू कैन यूज फॉर द डिटेल डिजाइन। नहीं, लेकिन डिटेल सर डिजाइन जैसे के लिए कि तो आप अगर डिफरेंशिएट करें तो जैसे एसआरटीएम डेटा वगैरह रहता है तो वो हिली हम्म, रीजन्स के लिए बेटर होता है, फिर कार्टोसेट वगैरह में वैली हम्म, रीजन्स वगैरह के अंदर कार्टोसेट ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए पूछ रहा था कि आप कंपेयर बाकी कर जब कोई सकते हैं नए सर। प्रोजेक्ट्स है तो उसमें कौन सा मतलब यूजेबल है कि नहीं, अदरवाइज कोई और डीएम दूसरे मोड से भी उठाया जा सकता है। नहीं, आप कंपेयर कर सकते हैं ना। बेस्ट तो तरीका यही है कि आप कोई भी आपका जो पास में सरफेस है जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, उससे आप इंफ्रा वर्क के सरफेस को आप कंपेयर कर लो, तो जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा उससे नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। दोनों भी एक टेंटेटिव है, दोनों भी एक्यूरेसी लेवल कुछ कुछ रहेगा, मतलब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस सैटेलाइट किस एक्यूरेसी से डेटा हम्म, लिया, हम्म, कंपैरिजन से कोई हम्म। मतलब तो मतलब सर ऑटोडेस्क कहता है सर इस चीज के लिए कि अगर आपका प्लेन एरिया है तो देन योर डेटा विल वेरी अप टू 10%। ठीक है, और अगर आपका हिली एरिया हुआ तो देन इट विल इंक्रीज, मे बी इट कैन बी 15% अप टू, कि आपका 15% एरर उसमें पॉसिबिलिटी है मतलब टेन डीटीए में। परसेंट इन एलिवेशन के टर्म्स में 10%। या 10 एलिवेशन के कोऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोऑर्डिनेट इट विल टेक एक्यूरेटली। एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एरर आएगा, जो भी आएगा 10 to 15% जो भी आएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट तो आपका ऑब्वियसली यूटीएम पे है, तो उसमें तो कोई एरर का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक। राइट? सपोज मैं वापस से इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पे वो स्टाइल सेट नहीं है। सर आपने ट्राई किया, आप डाउनलोड कर रहे थे, एक बार आप इस तरीके से जी इंपोर्ट सर, करके देखिए, एक्चुअली आई आपका हैव हो जाएगा। ट्राइड, बट देन उसमें एक चीज आ रहा है एरर कि आई नीड टू हम्म, हैव AutoCAD 2024 एंड एबव टू यूज दैट पर्टिकुलर extension. But I have Autodesk Civil 3D 2022 version, so it is not showing something anything. ये एक आप एरर आ यही रहा है। सेम सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सर? मैं वहां से इंस्टॉल कर रहा था सर, उसको ओपन करके।
I was trying to हाँ install it from the exe सर, file. अगर इंस्टॉल कोई बात नहीं, अगर सर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, नो नो वरी। मैं ये क्या करूँगा, ये जो मेरे पास कंट्री किट का टेम्पलेट है वो मैं शेयर जी कर दूंगा आप लोगों के साथ में। क्या यहाँ से कर सकते हैं क्या? लेट मी प्लेस अंडर द चैट बॉक्स, और आई विल शेयर विद द तानिया, तो शी विल शेयर विद यू। एक्चुअली मैंने डाउनलोड कर लिया था ऑटोडेस्क वेबसाइट से। इट इज अराउंड 900 MB। बट देन अभी मैं जब उसको ओके ट्राई करने जा रहा हूँ, देन वहाँ पे एक एरर आ रहा है कि उसको यूज करने के लिए आपको 2024 चाहिए। जी यही एग्जैक्ट यही वाला मैंने ट्राई किया था। सर, ये मेरा टेम्पलेट आप देखोगे मैंने कहीं पे भी जो इंडियन वाला है ना, आपको जी मेरे पास में नहीं मिलेगा, राइट? ओनली ये जस्ट डॉट DWT फाइल है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको पहले। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल करते टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। जी जब इंस्टॉल करते हो तो सेम वर्जन होना चाहिए, बट जब आप टेम्पलेट को इंपोर्ट करवा रहे हो, अगर आपके पास ये फाइल है टेम्पलेट की, बिकॉज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो ये टेम्पलेट फाइल एक अलग से एक्सट्रैक्ट होके बन जाती है आपके पास, जी। तो आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करवा सकते हो। अभी तो मेरा वो कोई नहीं, मैं ओके। मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं सर, ये फाइल ही ना, मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना, 4 MB ऐसा फोर कुछ एम बी होगा का ये। है। हाँ, तो मैं ये शेयर कर दूंगा, हाँ ठीक है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। थैंक यहाँ यू। हो जाए, यहाँ हो यहाँ हो जाएगा आई थिंक। ठीक है सर, आ गई है क्या? चैट बॉक्स में आ रही है? अभी तक तो नहीं आया सर। यहाँ अब आ गया देखिए सर, आ आ गया। गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो इसको सभी लोग डाउनलोड कर लो आप, लाइक सो दे कैन, यू कैन यूज इट। सो कैन आई शेयर माई स्क्रीन इफ यू अलाउ? यस श्योर सर, आप कर दो। So can you see my screen? नॉट येट सर, हाँ अब ठीक है। ओके सो मैं ये खोल के रखा हुआ हूँ, ऑटोटेक्स हम्म सिविल 3D 2022। तो इसमें ठीक है। इफ आई विश टू import that particular template file, it is in the हम्म downloads. So ओके how do I? Yeah, so I'll go to this import फर्स्ट option, सेलेक्ट, right? फर्स्ट सेव योर ड्राइंग नंबर। Okay. Timing, I'll just 3D. Okay. Okay, I have saved it, sir. नाउ यू कैन import Okay, so in from this here style, I'll just in style sir, in style, instance under the, insert, no? in the no no, not under the manage tab, in style Oh, ribbon tab. I have gone to the insert tab. No no, go Insert. to the manage tab, go to the manage tab, Okay. manage, yeah. Manage tab. Here is the styles on the last third one. Yeah, here is the import option, right, just right. Yeah, this one. Okay. Let me find it from the downloads. Okay. So, yeah, got it. Mm, yeah, just import. Now So you I'll check just all the click file, OK. all the parameters. Huh? Okay. Yeah, click OK. Really. My computer is likely to be a little bit slow, I guess.
Still No, some no more. worries, sir. It will take time because it's almost have 1600 this style sets. Okay. This Okay. time Deepak sir and they are not joining. It says Deepak Rawat successfully sir. imported 1519 Yeah. styles. Hmm. I'll Okay, press click OK. OK. Okay. Hmm. Now you can check, just create any surface. Okay. Just, yeah, create surface. Go to the surface. Polyline. Not like that. Just simply click on the surface and right click. Okay. Create surface like Yeah. this. Yeah. Now you can just drop down. You can see this IND border and all this style set is imported. If you drop down this, yeah, three dots, you can see all the style set is now in current drawing. Okay. So Even you are which? using 2022, Okay. but you have now all the style set, right? Yes, sir. Okay. So So this way you can which? able to use. Now you can Okay. use any. This Okay. is Okay. only representation. Okay, sir. I'll check what can be done here. Hmm. Okay. Sure. I'll stop sharing the screen then. Yeah, yeah. Please. Okay. Now, so you have to just select the like slope arrow and all these things. And let me go with the watershed analysis for this particular area. First, I have to bring the this country kit. So you can see now we have the arrow, slope arrow. Okay. You can add the legend of the slope arrow as well. From here, you can add the legend. Let's say slope arrow, dynamic. And here you can add. Now suppose I want to check the catchment area, okay, where the water accumulations will uh, appear, okay. So by using watershed analysis, you can see
this is the catchment it automatically created. So we in this area you can see this is the lowest portion area where the water will accumulate. In this area, this is that location where the water will accumulate. And here is more flattened type of area, this side, the lower side. And this side, the water is accumulating here. Also, we have the water drop analysis that will automatically create a water path. Suppose you want to check if the rainfall is occurs, then in which direction the water will flow. Okay. So we have the one option here is water drop analysis. So if I click, you have to just change this no to yes and click OK. If I drop the rainfall here in like this, so it automatically creating a path of water drop. Same thing I will show you in the hilly area, so you will understand more better way. That's why I take the hilly region. Suppose this is the hilly region, okay? And let me turn off the contours. Also, I don't want this transportation surface. So select, delete. I don't want this proposed as well. Okay. So I already created before this watershed analysis, water drop basically. So I delete this. Now we will check. Suppose my interest area is nearby this bridge or the road. Suppose is this location. So if you drop this like this, you will get the water path. If this side, right? So this is representing your the water flow. Like if the rainfall will occurs at this particular location, then the water will flow this path, and your most of the water will accumulate at this particular location. If I drop more, so they will follow like this, right? So why here is a one river. If I turn on the contours, you can see this is a one river here, this particular location. So the your water will flow like this side, then this side, and coming to at this particular location. And from this side also, it will come and accumulate at this particular location. So Even in you this can drawing, can check. you, hello? So in Yeah, this yes, sir. drawing, can you show the topographical elevation of the satellite image I'm talking about? Yeah, okay. Just want to see, compare. Like this. Because here we are checking. So this the water will flow like this, Okay, sir. right? This is the location where we checking. Even you can check here itself. Let's say I want to split into two parts this. So this is the, you can see this is the your 3D view and this is your 2D view, right? So this is that location we are talking about. Here is a bridge and this is that location.
Okay. Now suppose you want to highlight the labels of your the surface, whether it's elevations, whether it's a slope, you want to check at any particular location, then how you will check? Suppose I'm taking a one example from here itself. Let's say we have this bridge, okay? Suppose now we have this bridge, okay? And I just want to check the elevation at this location, this contours, and at midpoint, or you can check at pillar side or end of the bridge, okay? And we have any, let's say one building is here, and I want to mark all the 4 point elevation of this building, okay? So how we can do that? So just select the surface, we have the option is called the add labels, and under this add surface label we have the multiple options for the label style is slope, spot elevations, then you have the contours, okay? For like labeling the contours we have three options, three methods: single, multiple, and by using a intervals. So I will show you what all these three methods. First, we will check the spot elevation because my interest here is to check the what is the elevation at this particular contours. Okay, so elevation I just want, and you can add. Suppose this is the area where I want to check the elevation at this location. So you can see this is the elevation at this particular location. If you want to check at this location, you will get the elevation at this location. Now suppose at every pillars you want to check, or just at this location about this, if you want to check this, okay. If you want to check this, wherever you click the your elevation will be label, okay? तो जहां पे आपको elevation को label करना है, you have to just click in the drawing. जैसे मुझे इसको चारों पॉइंट पे मार्क करना है, 1 2 3 and 4. So we label the all four corners, right? So this is a elevation. Suppose you want to change the color, style, all the elevation labels. So we have an option is called a modify the style set, right? So either you can instead of changing the original one, you can just copy the current selection and you just change it the contents. Like if I want to change format, let's say Arial, and color will be like red, and if I apply, click OK. Now suppose if I try to add the elevation, the color will changed. Okay, तो आपको जैसे भी लेवल बनाना है, जहाँ पे स्पोर्ट करना है, आप वो कर सकते हैं। आपका इवन स्टाइल सेट है, जो आपका बेसिक कर्सर आ रहा है, इसको डिफरेंट करना है तो आप उसको डिफरेंट कलर से भी स्टाइल सेट जो मार्कर पॉइंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्पोर्ट एलिवेशन, राइट? सिमिलरली आई वांट टू चेक द स्लोप। अगर मुझे सपोज यहाँ पे स्लोप को चेक करना है, एंड इन द परसेंटेज, so I select the percentage. Again we have two method. One is a 1 point method, 2 point method. 1 point method कि जहां पे आप उसको क्लिक करोगे, जहां पे स्पोर्ट करोगे, you will get the slope. The second method is 2 point method. It will take a 2 points and give you the slope. For example 1 point. अगर मुझे इस यहाँ का चेक करना है, so it's showing the negative. That means the slope is going this direction is 51.5%.
If I am clicking here, so you can see this is the direction and it is 52.6%, राइट। तो जहां भी आप लोग क्लिक करोगे आपका स्लोप मिल जाए आपको। सपोज नाउ यू टेकिंग द सेकेंड मेथड इज 2 पॉइंट मेथड, तो यू हैव टू पिक द 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देन द सेकेंड पॉइंट। तो जो भी इन दोनों का एवरेज जो स्लोप बनेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इट विल रिप्रेजेंट दैट स्लोप। Suppose I am going in the reverse direction. This is my starting point and this is up point. So it is showing in the positive direction because you can see we are going in the upper direction. Okay, so you can represent your the surface label by the slope. Now suppose you want to label the contours as well. Suppose you have this contours, now you want to label it. So we have the three options. One is a contour single. If I select any contour, this I can label it, right? Anyone, any contours, okay? If you want to highlight this label, let us say you want to highlight from here to here all the contours in just one go, up to here only, okay? So we have the option is called a multiple contours. So I select this and select the first point and just intersect all the contours you want to label it. तो आपको जहां तक उसको लेबल करना है आज बस इसको इंटरसेक्ट करना है एंड यू जस्ट चेंज द व्यू स्केल, तो आपको दिख जाएंगे। तो पार्थ सर जो पूछ रहे थे कि कैसे हम इसको लाइक हम दे सकते हैं एक्सपोर्ट करके कैड फाइल में, तो यू कैन एक्सपोर्ट दिस फाइल इनटू अ कैड एंड शेयर विद द योर कैड ड्राफ्टर। तो वो आपको जो उसमें डिस्प्ले कराना होता है व्यू पोर्ट के अंदर, दे विल डिस्प्ले इन द फॉर द फाइनल सबमिशन, राइट। यही क्वेश्चन था ना सर पार्थ सर आपका? हेलो हेलो हेलो, आई थिंक ही इज नॉट हियर। You're audible, sir. इसके अलावा कोई क्वेश्चन? किसी का कोई डाउट हो, लाइक कुछ भी रिक्वायरमेंट हो जो उनके आपके प्रोजेक्ट्स में आपको यूजफुल हो? इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी लाइक आपको और एक्स्ट्रा इसमें जानना हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है बट अभी आपको पता नहीं चला हो, आपने काम किया हो इस पे? हेलो यस मनी सर। सर, इसका मेरे को वीडियोग्राफी मिल सकता सर आज का? सर तानिया, हेलो हेलो तानिया, आर यू देयर? आई थिंक क्योंकि ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है पूरा सेशन का फ्रॉम फर्स्ट डे से, तो आई थिंक ओके। तानिया के पास है कि अजय सर के पास है? अजय सर इज फ्रॉम आईटी साइड, राइट सर? हेलो मनीष जी, जो अजय सर जी है सर। आपके आईटी टीम से हैं, राइट? जी जी। हाँ, तो आप उनसे भी मांग सकते हैं। आई थिंक रिकॉर्ड वही कर रहे हैं मुझे जहां तक पता है, या फिर अगर तानिया कर रही होगी तो तानिया से तो मैं बोल दूंगा तो वो प्रोवाइड करवा देंगे। उनसे पूछ लूंगा क्या ओके है उसका प्रोसेस। ओके सर। ठीक है। ओके। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपका कोई, नो सर। किसी का भी? तो हाँ जी सर, इसमें एक अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे कि अलाइनमेंट मुझे ड्रॉ करना है तो इसमें बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन हो, मतलब ऑटोमेटिक कुछ ऐसा वो दिखाएगी, ये वे फॉलो करेंगे तो जो है ऑप्टिमम व्यू से जाएंगे, कट फी वगैरह बैलेंस वगैरह। जैसे इसमें QGIS में अगर आपने देखा होगा तो उसमें ओपन हम्म पाइथन में कुछ कुछ हम्म प्रोग्रामिंग मिल जाती है, जिसमें कि हम्म अपन ऑटो मार्क कर सकते हैं, जिसमें अपन को पाथ बता देता है कि ये पाथ से जाएंगे। उसमें अपन कंस्ट्रेंट भी सेट कर सकते हैं, लाइक
डिग्री ऑफ कर्व हम्म इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड देन हम्म आउटपुट हमको मिले। इस तरह के कुछ ऑप्शन है क्या इसके अंदर? बिल्कुल सर, इसमें है। वो चीज जो आप बता रहे हो वो हम अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल में देखेंगे। साथ में हम जो ग्रेडिंग करेंगे ना, हम्म। सपोज आपके पास में पूरा कॉरिडोर का ग्रेडिंग है। जैसे एक आपको डिजाइन प्रोफाइल बनाना है, राइट। मैं अगर इसका एक बहुत छोटा सा बेसिक ले लेता हूँ। जैसे मैं एक अलाइनमेंट बनाता हूँ, छोटा सा अलाइनमेंट बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट है एक। ठीक है। ये मैं आगे दिखाता आपको, बट बिकॉज आपने पूछा है तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्चुअल ग्रिड है। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो आपका ये लेवल है। ठीक है सर। ठीक है सर। अगर मुझे इस पे डिजाइन प्रोफाइल बनाना है, फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एक रफली मैंने डिजाइन प्रोफाइल लिया। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा कट है, ये आपका फिल है, राइट। हम्म। मैं इसको क्या करता हूँ, हैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कटिंग में है, कौन सा फिलिंग में है, राइट। हम्म। यहां से आपको आइडिया लग सकता है कि कितना आपका कट में जाएगा और कितना आपका फिल में जाएगा बाय डिजाइन प्रोफाइल। अगर आप ओनली जस्ट ग्रेडिंग कर रहे हो, ये तो है जब आपका डिजाइन कर रहे हो, कोई भी आपका कॉरिडोर है, आपका रेलवे का है, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो यहाँ से। बट आपका फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ ग्रेडिंग है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ग्रेड करता है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को यहाँ पे, राइट। ये एक, मैं सपोज करो मेरा एक बिल्डिंग पैड होता जहाँ पे मुझे बिल्डिंग वगैरह बनाना है, तो इसको अगर मुझे करना है तो इसके अंदर ग्रेडिंग का एक ऑप्शन होता है। बाय ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन में जीरो वॉल्यूम कर सकता था, यानी कि मेरा कट एंड फिल जो होगा वो जीरो जीरो आए। हम्म। ठीक है, तो वो दोनों केस है आपके। अगर आप डिजाइन में कर रहे हो तो आपका केस ये जाएगा जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मैं कम ज्यादा करूँ कि मेरा ये जो डिजाइन का जो होगा ये 50-50% नियर बाय रहे, राइट, ताकि आपका कट और फिल वो इक्वल आ जाए। नहीं नहीं सर, मेरा राइट, क्वेश्चन आप आई थिंक समझ नहीं पाए। मैं दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूँ। मेरे बताइए पास सर। दो पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। दोनों नॉन पॉइंट है, हम्म दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से 20 किलोमीटर है। हम्म मेरे को इसमें से पाथ सेलेक्ट करने हैं, ऑटो पाथ सिलेक्शन चाहिए मेरे को इसमें से, जिसमें कि मुझे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके मेरी क्वांटिटी का। ऑटो रन मतलब कुछ ऐसा पाथ वो आप खुद बना डिजाइन, सके, मुझे पाथ नहीं ड्रॉ ओके करना। ओके, मतलब आप डिजाइन प्रोफाइल की बात करें ना, बट नहीं, मैं अलाइनमेंट की बात ऑप्ट, डिजाइन अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे पाथ सेलेक्ट करना बेसिकली, आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी पाथ और फिर उसकी हाँ सिलेक्शन ओके ओके, करनी है। अलाइनमेंट पाथ भी आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैंने ओके एक एरिया आप। दे दिया है ना, मैंने एक एरिया ठीक दे है दिया 100 ठीक है स्क्वायर किलोमीटर का, और मुझे 20 किलोमीटर का उसमें लेंथ में मेरे को चाहिए कि आप कौन से ठीक पाथ है, से जाएंगे। जैसे ओके ओके, क्विक वगैरह में आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक पाइथन ओपन अवेलेबल है जिसमें अपन इस तरीके से कर ठीक है। सकते हैं। मैं समझा सर, आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है।
आपको ये डिफाइन नहीं करना है इसके बीच का कुछ भी, हाँ। ऑटोमेटिकली ये जो मैंने पाथ बनाया वो ऑटोमेटिकली ये खुद क्रिएट करे, यस यस जो मैं समझ पाया हूँ, यस यही है ना? यस। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है सर सिविल 3D में। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ मतलब अवेलेबिलिटी नहीं था। नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं है, बट हाँ अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया है, इसका इतने एरिया का आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए कि मेरा कट एंड फिल जीरो आए, ताकि मेरा कट भी 50% है, फिल भी 50%, तो वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल दे देगा आपका, यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देगा बेसिकली आपका, नहीं, वो तो राइट। हाँ, जैसे अगर बट आप जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगा। रहते हैं उसमें, तो उसमें कुछ कुछ अवेलेबल है इस तरीके से, मतलब कर सकते हैं अपन, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाता है। लेट्स से कि हमारे नहीं वो पास मैं पॉइंट्स के बीच का क्या अलाइनमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर बताया सर आपने वो? जीआईएस, क्वांटम जीआईएस जो है, उसमें आपको मतलब कुछ ओपन पाइथन अच्छा। होता है, तो आपको वहाँ पे कुछ पाइथन्स मिल जाते हैं इस तरीके की स्क्रिप्ट मिल जाती ओके है कि ओके। आप जो है इस तरीके सेलेक्ट करके ऑप्टिमम हम्म। मतलब वे आप वहां से वे आउट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन से ओके। जाऊँ। तो मुझे हम्म। मतलब जैसे नया डिजाइन करना है, न्यू लाइन डिजाइन करना है आपको, नया रोड डिजाइन करना है, तो समझ गया सर, मैं आपका पॉइंट ही समझ गया वो चीज ना। तो मतलब मुझे वो मेहनत नहीं करनी कि यहाँ पे मैं कहाँ यस से यस कहाँ यस, जाऊँ, पूरी चार ऑटोमेटिकली। ऑप्शन की हाँ, फाइल नहीं है, सॉफ्टवेयर ठीक ऑटो। है। आप हाँ बेसिकली भी अपन डीपीआर में भी 3 से 4 ऑप्शन ही देते हैं अलाइनमेंट के रीरूट कराने के ना, राइट। तो वो अगर वो आपको वैसे ही वो ऑप्टिमाइज करके दे रहा है तो हम वैसे भी दे सकते हैं उसको, राइट। हाँ, वही बेस्ट ऑप्शन है। वो अगर इसमें होता तो मतलब वही जानना चाह रहा था मैं। बट नहीं सर, वो इसमें ऐसा ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। हाँ इसमें तो ये है कि हाँ अगर आप डिजाइन प्रोफाइल से ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल है, बट अलाइनमेंट का नहीं है ऐसा ऐसा। समझ गया सर। और नहीं कुछ? इसके अलावा कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं। ठीक है। हेलो हाँ जी सर। सर, मैं पूछ रहा हूँ अभी बैंड सेट के बारे में, अभी बताओगे ना आप आगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो नेक्स्ट क्लास जो कल वाली क्लास होगी उसके अंदर अलाइनमेंट हम देखेंगे, अलाइनमेंट के लेवल्स देखेंगे, कैसे हम स्टेशंस इक्वेशंस भी लगाते हैं वो देखेंगे, स्टेशन इक्वेशन का यूज केस देखेंगे, देन प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल बैंड देखेंगे, प्रोफाइल बैंड के अंदर हमारे जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल में वाई मैं क्यों बोल रहा था कि इंडियन स्टाइल जरूरी है, जैसे आप ये देखोगे मैट्रिक सिस्टम वाला है, राइट। ये जो प्रोफाइल बनाया, अगर मेरे पास इसमें इंडियन मैट्रिक वाला होता ना, तो ऑटोमेटिकली जो हम अप्लाई करते हैं, मैं देख लेता हूँ इसमें इंडियन वाला मैंने अप्लाई किया है कि नहीं हमारे पास इसके अंदर। इसमें नहीं है, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे इंडियन वाला आ जाता, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इंडियन वाला कर दूंगा ना, तो जैसा हमारे प्रोजेक्ट में हमें सबमिशन करना होता है वैसा आ जाता है। जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाई देता हूँ, ड्राइंग 8 के नाम से। ये सर पूरा बैंड सेट का टेम्पलेट मिल सकता है वैसे, अगर ये आपसे बना ही हुआ है सर, लेना चाहें? ये बना ही हुआ है, बना ही सर, इसमें बना हुआ है ऑलरेडी। ओनली जस्ट आपको कलर चेंजिंग करना है, फॉन्ट स्टाइल सेट चेंज करने हैं आपको, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है बस, बाकी ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे आपका इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट चेंजेस आएंगी, आपका कट एंड फिल आ जाएगा, आपका सुपर एलिवेशंस आ जाएगा, आपका इसके अंदर क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाली दोनों बैंड आ जाएंगे। तो 5-6 बैंड जो आपको रिक्वायरमेंट हो वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अभी देखिए आपका ये वाला बैंड है, ठीक है, दिस इज द मैट्रिक सिस्टम टाइप ऑफ बैंड। नाउ सपोज आई चेंज दिस इनटू द इंडियन स्टाइल, ये आ गया ना। तो अगर मैं रोड यस। सेट कर लूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये सारे हैं एफ आर एल ई जी लेवल डिफरेंस, तो ऑटोमेटिकली ये सारे बैंड सेट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर भी कर सकते हैं, ये देखिए, राइट। यस। ये है आपको क्या चाहिए बैंड में, बस उतना रखना है, बाकी जो अननेसेसरी है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं कि कौन सा आपका फर्स्ट आएगा कौन सा लास्ट आएगा, उस टाइप से। इसमें एक रोड कंस्ट्रक्शन वाला भी हो। बेसिकली ये वाला ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है।
अगर आपको सिर्फ ईजी एफजी और लेवल डिफरेंस और प्रोजेक्ट चैनल्स देने हैं, देन आप अगर उसके साथ में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देने, तो आप यहाँ पे एक और है दूसरा जो हमने सेलेक्ट किया था रोड सेंटर वाला, ये वाला यूज कर लो। तो इसमें से जो नहीं चाहिए, जैसे ROW LHS नहीं चाहिए आपके बैंड के, ये हटा दो, डिलीट कर दो। रोड सेंटर आपका यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये आपका सुपर एलिवेशन है, ये लेवल डिफरेंस है, ये EGR, ये FRL है। तो ये हमें चाहिए होते हैं ओके यस। आपके, एज अगर आप हाईवे की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, जिसमें FRL होगा, आपका नेचुरल ग्राउंड होगा, लेवल डिफरेंस होगा, आपकी हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री होगी, आपका वर्टिकल होगा, आपका सुपर एलिवेशन होगा, प्रोजेक्ट चैनल्स होते हैं। राइट, यही सबमिशन होते हैं हमारे यस। इंडियन स्टाइल में। यही। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइट यहाँ पे जैसे FRL लिखा हुआ है, FRL @सेंटर लाइन मीटर लिखा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इनके बाय नेमिंग। और जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं इसके साथ में। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे हॉरिजॉन्टल इस टाइप से आ रहा है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो इसका ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें डिफाइन करना पड़ता है बैंड के अंदर। यहाँ पर जो स्टाइल है ना, अगर आप देखोगे कि वैसे मैं कल करा था, यहाँ पे देखोगे ये पहला वाला है, हर जगह आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड सिलेक्ट हो रखा है। राइट, तो FRL में हमारा डिजाइन जाएगा, तो डिजाइन में डिजाइन कर लेंगे। FRL में EGL है तो EGL रहेगा। ये हमारा कट फील है, तो यहाँ पे एक में डिजाइन, एक में हमारा एग्जिस्टिंग आ जाएगा, बाकी में हमारा डिजाइन आ जाएगा। अगर मैं अप्लाई करूँ तो देखोगा ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। राइट, तो आपका हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकल भी आ जाएगा, और जो लेवल डिफरेंस है, आपका जो भी कर्व वगैरह आप अप्लाई किया होगा जहाँ पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। साथ में अगर आपको यहाँ पे और भी चीजें आपको एडिशनली ऐड करना है इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये हम चीजें देखेंगे बट कल। ओके। ठीक है, मैं कोई चीज स्किप नहीं करना चाह रहा अभी। ओके सर। ठीक है, तो ये लेबल का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का, कि कैसे हम लेबल एलिवेशंस को या स्लोप हो। और एक और है कि आपका अगर पूरा एरिया को आपको करना है, लेट से आपका जो पूरा सरफेस है उसको करना है, तो आप कैसे करेंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इतने बड़ा एरिया करने जाऊंगा। तो आई विल चेंज दिस। ओके, अब सपोज मुझे इसको करना है, ठीक है, पूरे कंटूर्स को करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, गो टू द एड लेबल्स, सरफेस लेबल्स, एंड मल्टीपल एट इंटरवल्स, सेलेक्ट ओके। फर्स्ट आपको इस तरीके से करना है कि आपका मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर हो जाए, एंड देन यू जस्ट डिफाइन द इंटरवल्स। सो मैं थोड़ा जल्दी हो जाए उसके लिए मैं 400 ले लेता हूँ, बट आप कम भी ले सकते हैं। ये देखिए ये क्या करेगा, पूरे जो कंटूर्स जहाँ पे इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, लेबल करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप 2-3 बार में आप पूरा एंटायर सरफेस को कर सकते हो जनरली, या फिर अगर इंटरवल्स आपने छोटा कर दिया, लेट से 10-20 मीटर इंटरवल्स, तो ये पूरे ही सरफेस आपके लेवल ही लेवल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी स्टाइल वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो अगेन यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। ये स्टाइल सेट है इसका बेसिकली, तो आपके यहाँ लेआउट में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन आपको कुछ और एडिशनल डिस्क्रिप्शन या नाम कुछ भी इसमें ऐड करना है तो वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बट बेसिकली हमें एलिवेशन ही देने होते हैं, तो हम एलिवेशन देके इसका कलर कोडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल जो भी है, फॉर्मेट जैसे एरियल लाना है या कुछ हो, उसको बोल्ड करने हैं, तो अपना स्टाइल खुद का बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं।
किसी को कोई डाउट हो? चैट बॉक्स में कुछ क्या? अच्छा, ठीक है, तानिया ने बता दिया है। ठीक है, कि आपको वो मिल जाएगा वीडियो। ओके, ओके। तानिया, आर यू देयर? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। या ठीक है, सो वी एंड अप द सेशंस। तो आई थिंक वी कवर ऑलमोस्ट द टॉपिक्स फॉर द टुडे सेशन। Okay, okay, sure. Let's end this session here. Okay. Thank ओके, you. ओके Yeah. एवरीवन, थैंक यू सो मच। Okay, thank प्लीज you. आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ठीक है, और जब भी कोई क्वेश्चन हो फिर आप मुझसे पूछ लेना कल। ओके, बाय बाय एवरीवन। Okay, thank you.